Welcome students. Today we are going to study chapter 6. The title is My Childhood. It's in class 9, book name is Beehive, and it's chapter 6 from it. So before we proceed to the chapter, first of all, we must, or I would like to show, or I would like to give you a glimpse of the personality which we are going to study about or discuss about. This is one of the most brilliant minds that ever India has produced. His name is APJ Abdul Kalam. Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam. It's the full name of his. So before we get into the chapter, I'd like to have you to take a look at some of his images. Okay? He was the president just before Pratibha Devi Singh party. Now the current president of India is Mr. Ramnath Kovind. Before him was Pranab Mukherjee, and before him was Mrs. Pratibha Devi Singh Patil, and before her, he was the president at that time. He also is called as Missile Man. Okay, he is also called as Missile Man. He has been assigned this name because he has helped in development of many of the missiles. Basically, Agni. Agni is a series of missiles which are used by our Indian defense system. So he has helped many missiles to get to their conclusions. That's why he is also called as Missile. Now, coming on to his one of the most famous books that he has ever produced is Wings of Fire. अग्नि की उड़ान हिंदी में है. आपको अगर कभी मौका मिले तो उसे जरूर पढ़िए. वो बहुत ही अच्छी बुक है और आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने आगे अपने जीवन को बढ़ाया. वो प्रेसिडेंट थे, डीआरडीओ में थे, इसरो में थे, लेकिन उनमें किसी भी तरह का आप देखिएगा घमंड नहीं था, गर्व नहीं था. पद के प्रति या पद के लिए उनके पास कोई गर्व वाला बात नहीं. ठीक है, वो एक सामान्य इंसान की तरह ही उन्होंने जिंदगी जी और कईयों के लिए वो प्रेरणा बनी. एक हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि अभी वो क्या कर रहे हैं. वो यहाँ पर उनके बैठने की जगह बनाई गई है, एक मंच है, वहां पर वो बैठने जा रहे हैं. देखिए उनका बैठने के लिए इस कुर्सी को असाइन किया गया है. नाउ सी व्हाट ही विल डू. It is a different chair. See, it is a different chair from those. Now you can see what he has done. He has removed the unique chair that was there for him only, and other general chairs were present on the stage. So what he had done, he had removed that chair. He made the personality or personals to remove that chair, and he sat along with the other normal chairs which were present at that time on the stage. This shows you the simplicity of that man. ये उनकी सादगी के बारे में आपको बताता है कि किस तरह से वो एक बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे और उन्हें कभी भी इस बात का गर्व नहीं था. अपने आप को वो दूसरों से कभी अलग या ऊंचा नहीं समझते थे. न ही उन्होंने कभी जताया कि उनके पास बहुत सारे हक थे, अधिकार थे, बहुत सारी पदवियां थी
पदों में से, और अगर लास्ट टेन्योर में कहा जाए तो प्रेसिडेंट द मोस्ट प्रेस्टिजियस सीट और मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन is also called as the president is also called as the first citizen of India. So you can think of that कि कितने वो ताकतवर पदों पर बैठे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज का गर्व अपने सामान्य जीवन में आने नहीं दिया, जो हमें इस वीडियो से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके बारे में अगर आपको और जानना है तो बहुत सारे वीडियो उनके उपलब्ध हैं जो आपको उनका सामान्य जीवन के बारे में बताएंगे, लेकिन हमें उनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है, उनके बचपने के बारे में पढ़ना है। तो बचपने के बारे में पढ़ना हम शुरू करें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वो एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे। ठीक है, बहुत गरीब नहीं कहा जाए, लेकिन बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे। उनमें अपने माता पिता दोनों के ही गुण बहुत शानदार तरीके से उनमें मौजूद थे, कल्टीवेट किया गया, और उनकी सिंप्लिसिटी का आप उदाहरण देख लीजिए कि आज भी जब उनके आप घर जाते हैं, रामेश्वरम उनका घर है, रामेश्वरम कभी अगर आपको जाने का मौका मिला तो यू मस्ट विजिट द हाउस ऑफ आवर प्रेसिडेंट। ही वाज द 11th president, sorry, he was our 11th president. So if you get to Rameshwaram someday, you must visit his house. You will see the house still remains the same as it was many 10 years ago. Okay, he has not changed his house. His house are not so ravishing which you see the politicians, some of the politicians which are not even MLA have. They have 4, 5, 6, 7 bungalows and many more, but I say that. But as per APJ Abdul Kalam, his house is still very simple. He has many brothers. They all, if they would have thought of it, they all would have gone to many higher institutions, but we didn't. Okay, he let them live their life on their own strength, and he led his own. So from his childhood he was one of the you can say not the most brilliant of his house, but he was very bright. His culture that was inculcated in him was inculcated to him from his mother, and his father showed him discipline. Now, coming to the chapter, can you think of any scientists who had also been statesmen? Statesmen का मतलब किसी तरह का पद पर, राज्य या केंद्र के पदों पर, जैसे वो राष्ट्रपति थे, तो उसी के बारे में। Now, second point, APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology catered into the 21st century, became our 11th president in 2002. So APJ Abdul Kalam जो है वो स्पेस में, डिफेंस यानी रक्षा, भारतीय जो सेना जिसका उपयोग करती है वो रक्षा टेक्नोलॉजी कहलाती है। उसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों में उन्होंने मदद की, और जिसके कारण 21वीं सदी का भारत बन पाया। और उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपने के बारे में उसमें चर्चा करते हैं। Now, coming to the chapter or the main text, it's the first stanza or the first paragraph. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो रामेश्वरम जो टापू है या द्वीप है उसमें, जो कि मद्रास, पहले मद्रास हुआ करता था, अभी तो वो चेंज हो गया, अभी चेन्नई कहलाता है। तो वहां पर वो उनका जन्म हुआ था। नाउ सी माय फादर जैनुलाब्दीन, ठीक है, जैनुलाब्दीन। सो व्हाट इज ही से? APJ, his name J stands for this Jainullabbdeen. In Tamil or in the South Indian names, you will see this pattern that they does have a longer names.
Why do they have longer name? Because one is of their own, one is of their father, and the other part is of their village or the place where they belong to. So in his name APJ, J belongs to his father Jainul-Abidin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो मेरे पिता जैनुल-आबिदीन ना उनके पास बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई थी, उनकी फॉर्मल एजुकेशन मतलब असाक्षर कह सकते हैं, और ना ही उनके पास ज्यादा संपत्ति थी। इन सारी कमियों के बावजूद उनके पास एक बहुत ही अच्छी महान चीज थी, वो था इनेट विजडम। इनेट मतलब एक लोगों में होता है ना कि वो बचपन से ही बहुत अच्छा होता है कुछ लोग, तो उनमें ये क्वालिटी पहले से ही भरी हुई थी कि वो बहुत ही चालाक, समझदार, विजडम मतलब समझदार थे और साथ ही साथ जेनरस, उदार व्यक्ति थे। He had an ideal helpmate in my mother, अशी अम्मा, और मेरी माँ के तौर पर उनको एक बहुत ही अच्छी जीवन साथी मिली थी, अशी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वो बताते हैं कि मुझे तो अच्छी तरह से पूरे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है कि मेरे घर में हर रोज कितने लोग खाना खाते थे, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से तय मानकर कह सकता हूं कि हमारे घर के यानी हमारे परिवार के जितने सदस्य खाना खाते थे उससे कहीं ज्यादा खाना खाने के समय बाहरी लोग बैठा करते थे हमारे घर में खाने के लिए, यानी वो बाकी दूसरे लोगों को भी जो हेल्पलेस है, जिनको खाने की जरूरत है, वैसे लोग भी उनके यहाँ बहुत आते थे खाना खाने। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. मैं अपने पिता की, अपने परिवार की कई संतानों में से एक था। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, a short boy, एक नाटी कद लड़का, with rather undistinguished, मतलब बहुत अच्छा नहीं दिखने वाला। किसके घर में जन्म लिया था? Born to a tall and handsome parents. और जबकि मेरा परिवार में जो मेरे माता पिता थे वो टॉल थे और खूबसूरत थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे जो कि 19वीं सदी में बना हुआ था, वो भी 19वीं सदी के मध्य का बना हुआ। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwar. ये एक पक्का घर था जो कि लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और ईंट का बना हुआ था, मस्जिद वाली गली के रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में। My Austrian father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austrian मतलब होता है simple, strict and severe. Simple मतलब सादा जीवन जीने वाला, सामान्य। strict मतलब कड़ी नियमों के साथ, और severe उन नियमों के ऊपर चलने वाला, बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम तरीके से, नियमबद्ध तरीके से उनको मानने वाला भी सिविल। तो मेरे पिता जो है ऑस्ट्रिया थे, ऑस्ट्रिया बताएं सादगी और नियमों से भरा हुआ जीवन, और वो अपने या किसी के भी उनका जो मानना था कि जीवन में इनएसेंशियल, गैर जरूरी, ठीक है, गैर जरूरी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज यानी आरामदायक जो चीजें होती है उनसे वो दूरी बनाकर रखते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. लेकिन घर के सभी लोगों को या सभी को जो सामान्य जरूरत की चीजें थी, जो जरूरी थी, यहाँ पर गैर जरूरी है, ठीक है, यहाँ जरूरी है, तो जरूरी चीजें जैसे कि खाना, दवाइयाँ, कपड़े वो अच्छी तरीके से पूरे किए जाते थे। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. और मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपना था वो बहुत ही सुरक्षित था। इस तरीके से materially यानी भौतिक यानी चीजों की मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई, जो जरूरी चीजें
उनकी कभी कमी नहीं हुई और इमोशनली मतलब संवेदनात्मक रूप से भी मैं काफी सुरक्षित रहा बचपन में। Now, the Second World War broke out in 1939. When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था तब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of challenging scenes erupted in the market. मुझे पता ही नहीं था कि क्यों अचानक से बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई थी। I used to collect the seeds and sell them to provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. तो मैं क्या करता था, उन बीजों को जमा करता था और मस्जिद वाली गली में एक दुकान थी, वहां पर मैं उन्हें बेच देता। एक दिन में जितना मैं जमा करता उससे मुझे प्रिंसली सम मतलब उस समय के अनुसार काफी ज्यादा 1 आना, 1939 की बात हो रही है, 1 आना। अभी जैसे आप लोग हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन पहले 4 आना 8 आना कहा जाता था। 4 आना कहलाता था 25 पैसा, 8 आना कहलाता था 50 पैसा और 16 आने सच एक मुहावरा आपने सुना होगा, 16 आने सच यानी 1 रुपया 16 आने का अर्थ होता है या 100%। तो यहाँ पर वो 1 आना, ठीक है ना, 16 आने में 1 रुपया होता है, तो वो 1 आना वो हर रोज कमा लिया करते हैं उन बीजों को बेचकर। My brother-in-law जलालुद्दीन, brother-in-law मतलब हो गया जीजा, would tell me stories about the world war which I would later come to trace in the headlines of Dinamani. Dinamani क्या है, वहां का शायद न्यूज़पेपर का नाम है। तो वो कहते क्या है कि मेरा जीजा जलालुद्दीन जो मुझे युद्ध की कहानियां बताते थे और मैं उन कहानियों को, उन जो उसने घटनाएं बताई है उनको पेपर के हेडलाइंस में, दिनमणि नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके हेडलाइंस में मैं खोजने का कोशिश करता। और India being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. हमारा इलाका यानी वो रामेश्वरम जो है, क्योंकि अलग थलग था, आइसोलेटेड था, तो हमें युद्ध से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जल्दी ही भारत को अलाइड फोर्सेस द आर्मी ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया, द्वितीय विश्व युद्ध में ये तीनों देश, इंग्लैंड यानी यूके, यूएसए अमेरिका और रशिया, इन दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, जर्मनी के खिलाफ हुआ था। तो उनके खिलाफ जो है ये तीनों फोर्सेस ने एक साथ मिलकर लड़ा था, तो उसे अलाइड फोर्सेस कहा जाता है। तो भारत को आखिरकार उनका साथ देना ही पड़ा और भारत में इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित हो गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और जो पहला नुकसान हमें हुआ वो था कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती थी, वो ट्रेन रुकना बंद हो गई। अब क्या हुआ उसके कारण? The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train and on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। तो न्यूज़पेपर आता था ट्रेन से, तो अब क्या होने लगा, क्योंकि ट्रेन अब रामेश्वरम में रुकेगी नहीं, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में कहीं पर न्यूज़पेपर का बंडल बनाकर फेंका जाता था और लोग उसे कलेक्ट करके फिर बांटते थे। That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, as if naturally I felt the swamp। और इसके कारण क्या हुआ, मेरा कजन मतलब किसी तरह का चचेरा या उस तरह का भाई होगा, शमशुद्दीन, जो न्यूज़पेपर रामेश्वरम में न्यूज़पेपर देने का काम करता था, अब उसे किसी ऐसे हाथ की जरूरत पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी जो बंडल्स यानी जो न्यूज़पेपर का बंडल फेंका जाता है उस बंडल को वो कोई कलेक्ट करके उसको दे सके या ला सके, और मैंने वो जगह भर दी। Samshuddin helped me on my first pages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। और शमशुद्दीन के कारण मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। आधा सदी यानी 50 साल, हाफ अ सेंचुरी
आधी सदी के बाद भी मैं आज भी उस गर्व को महसूस कर सकता हूं जब मुझे पहली बार मेरी पहली कमाई मेरे हाथों में मिली थी। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर एक बच्चा जो जन्म लेता है उसमें कुछ गुण, ठीक है ना, with some inherited characteristics, कुछ गुण जो वंशानुगत तौर पर उसमें आते हैं और क्या होता है into a specific socio-economic and emotional environment. socio-economic मतलब सामाजिक आर्थिक, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक और संवेदनात्मक एनवायरनमेंट में रहता है और उसके बाद एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और उसके बाद उसको, अब जैसे आप कुछ गुण आप में पहले से मौजूद होते हैं, आप बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं सीखा है, आप उसमें देखिएगा कुछ बच्चे बहुत छोटे से ही अपनी चीजों को शेयर करते हैं, कुछ बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, कुछ लोग खाने के प्रति बहुत फसी होते हैं, सुनना खाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग खाने के प्रति बहुत ही तैयार रहते हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं खाते हैं, कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं। तो कुछ गुण जो है जन्मजात होता है, लेकिन कुछ गुण लोगों में सिखाए जाते हैं, वो सीखता है। तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि मुझमें कुछ गुण जो है वो जन्मजात थे, जो कि एक सामाजिक, आर्थिक और संवेदनात्मक एनवायरनमेंट में वो बढ़े और साथ ही साथ मेरी ट्रेनिंग भी हुई कुछ अथॉरिटेटिव फिगर। अथॉरिटेटिव फिगर मतलब ऐसे लोग जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके कारण आप कुछ सीखते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. मैंने अपने पिता से सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद को डिसिप्लिन रखना और ईमानदारी सीखी, जबकि मेरी माता से मैंने क्या सीखा, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में भरोसा और दया का भाव। और वैसे ही मेरे 3 भाइयों और मेरी बहनों ने भी वही गुण अपनाए। I had 3 close friends in my childhood, रामानंद शास्त्री, अरविंदन and शिव प्रकाश। बचपन में मेरे पास 3 दोस्त थे बहुत नजदीकी, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. ये तीनों बच्चे जो हैं बहुत ही जटिल, यानी कह सकते हैं हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आते थे, लेकिन बचपन में कभी भी हम लोगों ने एक दूसरे में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं देखी थी। हमारे धर्म और हमारे पालन पोषण के अलग अलग रीतियों के कारण। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री was son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. रामानंद शास्त्री तो वहां का जो मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर, उसके मुखिया थे, महंत थे लक्ष्मण शास्त्री, उनके बेटे। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. आगे चलकर उन्होंने महंत का पद अपने पिता से प्राप्त किया। उसी मंदिर में अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। जो तीर्थ यात्री आते थे उनकी यात्रा वगैरह का व्यापार में, यात्रा तय करने का व्यापार में अरविंदन चला गया। एंड शिव प्रकाशन became the catering contractor for the Southern Railways। और शिव प्रकाशन जो है वो दक्षिण रेलवे में केटरिंग का काम करने लगा, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर वो काम करने लगा। So this is all for today. We will continue in the next video from paragraph 5. Thank you.